लॉकडाउन कब खुलेगा यार? Good morning YouTube Nation and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you all are doing completely fine and I know you guys are not doing completely fine because quarantine ही ऐसा चीज है, क्या कर सकते हैं, घर पे बस बैठे रहो कब खुलेगा. Today I've come up with a new video and the video topic is let's pretend this is my phone. Hello? हाँ, क्या आप हमें 2000 रुपया दे सकते हैं? हम आपको इंटरव्यू में पक्का सिलेक्ट करेंगे. अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा. आप कम से कम आके तो देखो हमारे ऑफिस में. Some of the agencies take money, some don't, some refund you back, some do not refund you back, and some end up into fraudulence. Today I'm going to tell you about how do you differentiate between an official invitation for a job interview and the ones that sound something like we'll tell you the questions. जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी, so I had a lot of confusion differentiating between official invitations and the ones which are fake. कोई तो WhatsApp पे टेक्स्ट कर देते, आपका नंबर मुझे मिला है कॉलेज से. उस कॉलेज के कैंपस ड्राइव के इंटरव्यूअर के HR के भाई ने, के बेटे ने, समथिंग ने मुझे आपका नंबर दिया था एंड नाउ आई एम इनवाइटिंग यू फॉर अ जॉब इंटरव्यू. ऐसे डायलॉग्स बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग आपको WhatsApp में मैसेज करके आपको ये सब बताएंगे, बट यू हैव टू बी नॉलेजेबल एंड यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट हु इज फेक and who is not. You should get suspicions when these things match your checklist of fraudulence. Number 1, always check the email address. जब आपको कोई जॉब इन्विटेशन आता है तो आपको जो ईमेल एड्रेस से आता है, आप वो ईमेल एड्रेस एक बार चेक कर लो. If it is coming from Indigo, something like indigo@hrhelpdesk@indigo.com, something like this will come up. एंड में आपका हमेशा spicejet.com या फिर vistara.in या फिर indigo.in समथिंग, ऐसा कोई वेबसाइट दैट विल डायरेक्ट यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडिगो, ऐसा ईमेल एड्रेस मेंशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन्विटेशन फ्रॉम से GoAir, so the email address would always end with @goair.in or goair.com. It will never end with something like allcareers.in, allcareers.com. जब आप देख लोगे कि एंड में उस इन्विटेशन का ऑल करियर्स, इंडियन एविएशन या फिर jobsalert.com ऐसा कुछ होता है, then you have to understand कि that is an invitation which is not coming directly from the company. It is coming from a consultancy or an agency. Always check the email address. If it's not coming from something like indigo.com, spicejet.com, spicejet.in, goair.in, then you have to understand कि it is not an official job invitation. Point number 2, always check the phone number which is mentioned in the email ID. अगर आप देख रहे हो कि email आया, जो आपको email आया है जॉब एप्लीकेशन के लिए, if it has a personal mobile number, it means that this email ID is fake. कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब भेजता है, कोई भी HR या फिर कंपनी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है या जॉब इन्विटेशन भेजता है, इट विल ऑलवेज हैव अ लैंडलाइन नंबर फॉर योर असिस्टेंस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू विल ऑलवेज सी दैट मोस्ट कॉमन चीज जो है कस्टमर सपोर्ट. जब आप कोई कंपनी की कस्टमर सपोर्ट को कॉल करते हैं, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 1800 और समथिंग लाइक दैट, राइट? इट विल नॉट हैव अ पर्सनल मोबाइल नंबर. सो बी वेरी कॉशियस एंड चेक द मोबाइल नंबर which is mentioned in the email ID. If it is a personal mobile number, it's fake. Point number 3, receiving WhatsApp messages. No company, in fact no official company will text you on WhatsApp. Why will an official work ever take place on a domain which is used for informal works? Are you getting my point? मतलब अगर आपको कंपनी कांटेक्ट करना चाहेगा तो सबसे पहले आपने जो ऑफिशियल ईमेल आईडी से जॉब अप्लाई किया है, उस ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करेगा ना. वो आपको व्हाट्सएप पे क्यों लिखेगा कि हाई यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ? व्हाई विल दे राइट इट यू ऑन व्हाट्सएप? इफ यू आर रिसीविंग मैसेजेस from any person जो claim करता है कि hi I am from so and so company, I saw your application and now you are selected, you have to do this whatsoever he says, tell that person if you want to contact me, please send me an official email in my email ID from your company ID. If that person doesn't send you an email on your ID, मतलब वो पक्का झूठ बोल रहा है.
ही इज डेफिनेटली कॉलिंग यू। और वो अगर आपको ईमेल भेज भी दे तो आप चेक करो, ऑफ कोर्स, बैक टू पॉइंट नंबर 1, कि वो जो ईमेल यूज कर रहे हैं उसके एंड में indigo.com, spicejet.com, airasia.com कुछ ना कुछ लिखा हो, कंपनी का डोमेन लिखा हो, वेबसाइट से उसका ईमेल आईडी एंड होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको कोई इंसान आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, प्लीज कम टू दिस एंड दिस प्लेस, डोंट गो, प्लीज डोंट गो, यूज योर ब्रेन्स, बी knowledgeable. Half knowledge is dangerous. I've become weird during quarantine. Word. I said word. I've become weird during quarantine. Money. इन शॉर्ट, कोई कंपनी आपको जॉब लगाने के लिए पैसा नहीं लेगा, और अगर लेगा तो क्या एचआर आपको डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे ये इतने पैसे दो कि नहीं दो? सी, आई सीरियसली डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग रिगार्डिंग व्हाट हैपेंस, अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। सीरियसली ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, ना ही आज तक मैंने सुना है कि कोई कंपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको लिख रहा है कि गिव अस दिस अमाउंट ऑफ मनी और मैं आपका सिलेक्शन कर दूंगा। जब ऐसा होता है तो आप समझ जाना तभी कि वो पक्का फेक है। कोई भी एयरलाइन आपसे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पैसा नहीं लेगा। They will not tell you to pay a certain amount of money to get selected. They will not guarantee you a job कि आप मुझे इतने पैसे दो और मैं आपका जॉब पक्का लगा दूंगा। वो ऐसा कभी नहीं होगा। जब ऐसा हो रहा है, कोई आपको बोल रहा है, तो फिर आप just back off, move your hands out of that, don't get your hands dirty, don't mess up things. And because see, if you make a mistake, that's completely on you. It's your responsibility कि आप समझ नहीं पाए कि वो फेक है या नहीं। फिर आप later आप उसके बारे में आप FIR करो या सू करो, that is your call. Some people don't even do it. बेचारे वो पैसा दे देते हैं around 15,000, 1 लाख, एंड में उनको पता चल रहा है कि ये इंसान उनको कौन करके चला गया, ये स्कैम था, एंड दे डू नथिंग अबाउट इट। दे थिंक कि अभी इसके ऊपर FIR करूंगा, केस लड़ूंगा, और ज्यादा पैसा जाएगा, हम और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, एंड दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट्स व्हाट हैपेंस. You have to educate yourself so that your parents don't get into trouble for you guys. Family wants you to progress. So what happens is they'll give you the amount of money. वो कह देंगे कि ठीक है बेटा, तुम ये पैसे ले लो और तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, जा सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले। तो वो आपको पैसा दे देंगे, उसके बाद आप जाके उस कॉन आर्टिस्ट को दे दो। उसके बाद क्या होगा, द हार्ड अर्न मनी विच योर पेरेंट्स हैव अक्यूमुलेटेड फॉर यू, और मान लो कि आपने ही लोन ले लिया इस चक्कर में, एंड देन दैट हार्ड अर्न मनी goes down the drain. How are you going to feel about that? So of course yes, Air India takes money for the application fee because it's a government application. वो भी it takes depending upon the ये SC ST जो भी है आप, या फिर minority है जो भी है, उस हिसाब से वो application fee लेता है, लेकिन joining के लिए नहीं बोलेगा कि आप मुझे इतने पैसे दो और मैं आपका joining लगा दूंगा। So please be careful. Number 5, inappropriate pictures. Okay guys, so let's get to some serious discussion over here. Now this is not only restricted to the aviation industry, not only restricted to airline, hospitality, whatsoever. Any luxurious job that a boy or a girl tempts to have leads to a path which is not appropriate. ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है, सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री में नहीं होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नहीं होता है, हर इंडस्ट्री में ऐसा कोई ना कोई होता है जो आपको गलत रास्ता जरूर दिखाएगा कि इस रास्ते से आप जाओ, आसान है, जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन आप इस रास्ते से जाओ। टेल मी समथिंग, जो वो इंसान कर रहा है वो गलत है, लेकिन इफ यू अग्री टू डू इट, आप भी तो गलत हो। आपको समझना चाहिए दैट इफ दैट पर्सन आपसे इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स मांग रहा है और उसने जॉब दिला दिया आपको, तो क्या उसका inappropriate pictures मांगना सही है? You have to make that choice. Whether he is genuinely offering you a job or not, the genuineness doesn't come into this picture because this is ethically, morally wrong. Please be careful guys. जहाँ आपको दिखे कि WhatsApp में जो भी आपको मैसेज कर रहा है, सबसे पहले तो उस इंसान को ब्लॉक कर दो। आप देख चुके हो कि कोई भी WhatsApp में, as I mentioned, कोई भी आपको WhatsApp पे मैसेज नहीं करेगा। If that person is telling you कि वो आपको जॉब दिला सकता है, तुरंत ब्लॉक कर दो, या फिर it's your choice. If you want to lodge an FIR against that person, you are most welcome. Please do it. However, do not get trapped. Try to differentiate between real and fake. Fraudulence is a crime. If you are giving the person some amount of money so that he can get you into a job, you are encouraging that person to do something wrong with somebody else as well. Okay guys, so to conclude this video, सब बहुत serious हो गए हैं. Please understand the difference between real and fake.
ऑफ कोर्स सी, कोई जॉब आसान नहीं होता, कोई रास्ता आसान नहीं होता। और अगर आपको क्या लगता है, अगर सारे इस ये जॉब को पाने के लिए अगर कोई आसान रास्ता होता तो हम क्या पागल है? वाई विल वी गिव 13 इंटरव्यूज, 16 इंटरव्यूज, 20 इंटरव्यूज टू गेट सिलेक्टेड अगर इसका कोई आसान रास्ता होता तो? और क्या फर्क पड़ता है? अगर आप मुश्किल रास्ता चूज कर रहे हो, आप रिजेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर ही कोई कमी है ना। अगर आपका हाइट सही नहीं है, आपका हाइट नहीं है कैबिन क्रू बनने के लिए, तो ऑफकोर्स आप पैसा देके भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हाँ पैसा दे दो, मैं सिलेक्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट गेट सिलेक्टेड अगर आपका क्राइटेरिया ही मैच नहीं करता। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो अच्छा कर लो ना, अच्छा बना लो, ट्राई एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर ये जॉब नहीं तो कोई ना कोई अच्छा जॉब तो मिल ही जाएगा ना। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। दिस वॉज माई वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड यू डू नॉट गेट कॉन्ड इन फ्यूचर. God bless you all and all the best for the interviews which are coming up. You can check out my previous videos about why you don't need to join an institute to become a cabin crew. You can also check out my previous video about the 3 simple rules to lose weight. I've mentioned the link in the description below. I hope you like this video. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. You can follow me on Instagram and DM me your queries and I will definitely reply to each one of you. Thank you. Bye bye. Take care.